এসেছে সত্য, ওয়াজাহাকাল বাতিল, চলে গেছে মিথ্যে। ইন্নাল বাতিল, নিশ্চয় মিথ্যে, কানা যাহুকা, চিরদিন মিথ্যে। দুনিয়া আজকে আমেরিকা কেন সারা দুনিয়া চালাচ্ছে? সারা পৃথিবীর বিবেকবান লোকগুলিকে আমরা বাংলাদেশ কেউ যদি কিছু গবেষণা করো ওকে জেলে ঢুকাই আর আমেরিকা কাজে লাগাই। সমস্ত বিবেকগুলিকে কিনে নিয়ে গিয়ে কাজে লাগাচ্ছে। আর আমরা বিবেকগুলিকে, যত বিবেকবান যত বুদ্ধিমান, দূরে সরাই দাও। কারণ ও কোনোদিন আমার গদি দখল করে কিনা, ও আমার স্থল দখল করে কিনা। বিবেকবান যারা, বুদ্ধিমান যারা, বুদ্ধিজীবী হত্যা দিবস পালন হয় না? হয় না? কারণ একটা দেশকে পঙ্গু করতে হলে বুদ্ধিজীবীদেরকে ধ্বংস করে দাও, কারণ এরাই তো বুদ্ধি দিয়ে। তবে বুদ্ধি যদি এইভাবে আমাদের বুদ্ধি বিবেককে কাজে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। এছাড়া আমাদের কোরআন সুন্নাহকে গবেষণা করতে হবে, পড়তে হবে। আজকে ডক্টর জাকির নাইক কেন বিশ্বজুড়ে, আজকে বিশ্বজুড়ে কেন তার খ্যাতি বলেন? একেবারে রানিং আমাদের একটা উদাহরণ। কেন বলেন? কি কারণ? এরকম ডক্টর কি আর নাই দুনিয়াতে? নাই। তো ডক্টর জাকির নাইক কেন এত উপর উঠে গেল? কেন ডক্টর জাকিরের আজকে সারা দুনিয়াতে প্রতিনিয়ত লক্ষ লক্ষ না কোটি কোটি মানুষ কেন তার ক্যাসেট, ভিডিও, অডিও শুনছে, তার আলোচনা শুনছে? কেন? কেন আজকে বড় বড় ইহুদি খ্রিস্টানদের, হিন্দু পণ্ডিতরা তার কথা শুনলে তাদের দিল শুকায় যায়? কেন? কেন আজকে আমেরিকা, ইউরোপের ভিসা তার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে? কেন ইন্ডিয়ান সরকার তার সবকিছুকে বন্ধ করে দিচ্ছে? কেন? কি কারণ? একটা মানুষের বিবেক গবেষণা করে আজকে সারা পৃথিবীর মানুষের বিবেকের মধ্যে এমন কিছু দিয়েছে যা সত্যকে তালাশ করার মতো মানুষ পুঁজি পেয়েছে। কেন ডক্টর জাকির নাইককে হত্যা করলে 50,000 রুপি ঘোষণা করা হয়েছে ইন্ডিয়াতে? কেন তার আজকে প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে? কারণ এখান থেকে বিবেকের গবেষণার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এই বিবেকবান ছেলেগুলো এই পৃথিবী একদিন জয় করবে। তাহলে বন্ধুরা, আজকে বিবেককে আমরা বাদ দিয়ে কিছু চিন্তা ভাবনা করি তো ঠিক না। এই জন্য বিবেককে কোরআন সুন্নাহর গবেষণা করতে হবে। এই আপনার সঠিক আপনাকে ধারণা দেবে। এভাবে যারা বিজ্ঞবানদের সঙ্গে থাকতে হবে। যারা বিজ্ঞ জ্ঞান সম্পন্ন কথা বলে তাদের কথা শুনতে হবে। আজ কেন আমাদের কাঠমুল্লারা ডক্টর জাকির নাইকের বিরুদ্ধে এত বড় ফতোয়া? কেন? এই কাঠমুল্লারা তাদের নিজের বিবেককে বন্ধ করে রেখেছে। ডক্টর জাকির নাইক এখন যারা শিক্ষিত মানুষদের বিবেক খুলে দিয়েছে যে না, কোরআন তুমিও বুঝতে পারো, কোরআন তুমিও পড়তে পারো, কোরআন তুমিও গবেষণা করতে পারো। আরবি শেখা দরকার না, মাদ্রাসার ডাল খাওয়া দরকার নাই, মাথা নাড়িয়ে করা দরকার নাই, খানকার মুরিদ হওয়ার দরকার নেই, মাদ্রাসার হুজুরের ছাত্র হওয়ার দরকার নেই। কোরআন সুন্নাহ গবেষণা করতে হলে বিবেককে কাজে লাগাতে হবে। তোমার পূর্বসূরীরা যে গবেষণা দিয়ে গেছে সেটাকে পড়লেই যথেষ্ট। এই সমস্ত বিবেকহীনদের পিছনে থেকে কোনো ফায়দা নেই, ক্ষতি ছাড়া। বিশুদ্ধ জানার কোনো উপায় নেই। এই জন্য বন্ধুরা, আল্লাহ রব্বুল আলামিন যারা বিবেক দিয়ে কথা বলে কোরআন সুন্নাহর, এদের মাজলিসে এদের আলোচনা শুনতে হবে, এদের অডিও ভিডিও বই পড়তে হবে। তাহলে আপনার বিবেক কাজে লাগবে, দুনিয়া পাবে, আখিরাত পাবে। सबसे पहले तो मैं नाइक साहब को धन्यवाद देता हूं कि इस खुला अधिवेशन में तमाम लोगों की आप जवाब दे रहे हैं और अधिकतर गैर मुस्लिमों को लोगों को जवाब दे रहे हैं और संतुष्ट कर रहे हैं। मेरा जवाब यह है, मैं त्रिलोकचंद जैन, नगर परिषद उपाध्यक्ष किशनगंज। मैं जैन धर्म में, जैन परिवार में जन्म हुआ हूं और अधिकतर जो घर में जन्म लेते हैं उसी धर्म का पालन करते हैं। लेकिन मैं इंसानियत धर्म मानता हूं और तमाम धर्म की किताबों को पढ़ता हूं और तमाम लिखी हुई अच्छी बातों को मैं ज्ञान करता हूं। लेकिन एक बात आज जानना चाहता हूं कि आप यहाँ केवल, जैसा मुझे सुनने में और देखने में अभी पड़ रहा है, कि आप जो बात कह रहे हैं केवल इस्लाम धर्म की आखिरी बात, इस्लाम धर्म की सारी बातों को आप कबूल करवा रहे हैं और इस्लाम धर्म को सर्वोपरि मान रहे हैं।
मैं भी मानूंगा अगर आप मेरी बात को, अभी ईसाई धर्म भी है, बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है और सिख धर्म भी है, हिंदू धर्म भी है। और धर्म क्या है? धर्म तो मैं मानता हूं पानी का धर्म ठंडा है, सूर्य रोशनी देता है उसका धर्म है, चांद रोशनी देता है वो धर्म है, हवा का बहना वो धर्म है। ये संप्रदाय है या क्या है, या किसको मानना चाहिए, या जो लोग जहां मान रहे हैं वो अच्छी बात है, या हम नहीं मान रहे हैं तो उसमें हमारा क्या नुकसान है? इसको जरा तमाम बातों को मेरा स्पष्टीकरण चाहिए कि किस धर्म को मानने से और किस बात को मानने से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और बहुत अहम सवाल पूछा है। वो कहते हैं कि वो इंसानियत धर्म में मानते हैं, सारी मजहब की किताब को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि जाकिर बाकी लोग का हवाला देखे, लेकिन इस्लाम कहते हैं कि इस्लाम फाइनल है, इस्लाम मेन है। ये आपने जैसा कहा, इस्लाम मेन है। भाई साहब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेद में लिखा है। अगर वेद में लिखा है कि आखिरी अवतार कल के अवतार है, अगर लिखा है तो मैं उस चीज को निकाल नहीं सकता हूं ना। मैंने तो नहीं लिखा हूं, उसी तरीके से बाइबल में लिखा है। आपने कहा बाइबल का, आपने कहा वेद का, बाइबल में लिखा है। बाइबल पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14, ईसा अलैहि सलाम कहते हैं, आई हैव मेनी थिंग्स टू से unto you but he cannot bear them now, for he when the spirit of truth shall come he shall guide you unto all truth, he shall not speak of himself, all that he shall speak। ये दे रहे हैं कि एक आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले। ये मैंने तो बाइबल नहीं लिखी ना, मैंने तहकीक की। अगर मैं तहकीक करता आप आके बोलो डॉक्टर जाकिर नाइक आप जो कह रहे बाइबल में नहीं है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना, आप अजीब बात सुन रहे तो आपको अजीब लग रहा है, और बहुत लोग को अजीब लग रहा है। कुछ लोग कबूल करे, कुछ लोग कबूल करने से डरते। फर्क ये है। नहीं सुनिए बात, तो ये आप बोलना चाहिए जाकिर भाई बाइबल में गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 14 है ही नहीं। अब लेके आओ बाइबल, पढ़ो मेरी बात। ये कल की पुराना है ही क्या? नहीं, आपकी किताब में लिखा है तो मैं छुपा तो नहीं सकता हूं ना। मैं क्या कहता हूं कि सारी धार्मिक किताब को लो और यकसा है वो फॉलो करो, जो यकसा नहीं उसको छोड़ दो ना। तो अक्सर जितने अहम मजहब है, चाहे हिंदू मजहब है, चाहे बुद्ध मजहब है, चाहे ईसाईयत है, चाहे जुडाइज्म है, चाहे इस्लाम में, सारे में यकसा लिखा है। आप अगर पढ़ेंगे हिंदू मजहब की किताब, वेद पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये चारों मेन मजहब को आप लेंगे, सब में लिखा है खुदा एक है, उसका कोई अक्स नहीं है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं थोड़ी छुपा सकता हूँ। मुसलमान भी चौंक जाते, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत हो ही नहीं सकती। कितने मुसलमान मेरे खिलाफ है, हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत हो ही नहीं सकती। लेकिन जब खुदा फरमाते तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो यकसा है। मैं भाई साहब जितनी लंबी तकरीर में दे सकता हूँ हिंदू और इस्लाम मजहब में यकसानियत, उससे लंबी तकरीर दे सकता हूँ डिफरेंसेस के ऊपर, इख्तिलाफ पे। लेकिन मेरा काम इख्तिलाफ ने, मेरा काम यकसानियत का